Good morning, children. On the behalf of Oscar Public School, I welcome you all to the online classes. My name is Namesha. I'm your social science teacher. I hope you all are fit and fine at your homes. I'm so excited for today's class. So, are you excited? Of course, you are totally excited. So, let's start today class. We are just continue the chapter number 1 of geography. And what is the name of this chapter? The earth in the solar system. Repeat after me. The earth in the solar system. So before I'm going to start a new class or a new topic, so we can take a quick recap of previous classes. Okay, so in this chapter we have already read about the stars, the solar system, the constellation, asteroid, meteoroids, planets. As you know that sun is also a star, and all the planets have the planets can easily differentiate from the stars. Unlike stars, they do not emit their light energy. They have the mass and density. We cannot see planets our naked eyes. Apart from this, we have already read about in a previous class, that is inner planets and outer planets. Tell me first, how many planets are there in our solar system? Yes, you are absolutely right. 8 planets are in our solar system. So the inner planets we have already discussed about it. Mercury, Venus, Earth and Mars. These 4 planets are come under the inner planets. The hottest planet is Venus, and Venus trap the sun's heat easily. You have already done these 3 terms, and you have already read about this important facts. In yesterday class I have already taken test from these points, like a Jupiter is the largest planet, Mercury is the smallest planet, Mars is known as a red planet, Venus is the brightest planet, Neptune is the farthest planet, Venus rotates from east to west direction, Earth is also a blue planet. Planet with one moon is Earth. Second largest planet is Saturn. The only planet which has a system of ring around it is Saturn. We have already discussed about the outer planets. Like we have already discussed this, which are the inner planets? Mercury, Venus, Earth and Mars. These are for the inner planets, and the outer planets is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These 4 are the outer planets. So we have already discussed about the Earth. Earth is our unique planet. And why it is called a unique planet? Because of presence of water, एयर, वाटर, ऑक्सीजन एंड सॉइल, इन 3 चीज़ों की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है. दैट इज़ वाई अमंग ऑल द प्लैनेट्स अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ. सिर्फ और सिर्फ अभी अर्थ ही है ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है. जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सॉइल. It is also called a blue planet as well. As you know that na, Earth is called a blue planet. So why it is called a blue planet? Because of Earth का 71% part is covered with the water. So we can just see from the space. जब space से Earth को देखा गया तो it look like a blue ball. So that is why it is called a blue planet. See this is our 8 planets: Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars. This is the belt, asteroid belts. Okay, inner planets हैं ये. This is our outer planets: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, and Saturns have a ring.
So we can talk about the moon. Moon is the natural satellite of the earth. बेटा every planet has a moon. सिर्फ और सिर्फ मरकरी और वीनस के पास मून्स नहीं हैं, ठीक है. एंड मून क्या है? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट एंड एवरी प्लैनेट हैज़ अ moon. Some have a, like a earth have a only one natural satellite, that is that is moon. Mars have a 2 moon, Jupiter has a 21 moon, Saturn has a 18 moon, Uranus is also 18 moon. So moon it complete one revolution in 27 days and 8 hours. अर्थ सन का रेवोल्यूशन लेती है, सन के अराउंड में घूमती है. सेम एज दैट मून अर्थ का रेवोल्यूशन लेता है. ओके, सो इट मून टेक्स अ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 27 days and 8 hours. ओके, so it reflect the light received from the stars in the space. So basically it is the हम लोग ये बात करेंगे कि moon has a volume that only 2% of earth volume, and some are the people who can foot on the moon. यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मून पर भी होकर आए हैं. On 29th July 1969 there was a person. This is the person. His name is Neil Armstrong. Neil Armstrong was the first human to set foot on the moon surface, followed by the Edwin Aldrin. He's from Russia. Got it? So as you know that beta moon का day का temperature it's about 100 degrees Celsius and night temperature falls in minus 150 degree Celsius. Okay, so we can start the, and again one more thing, moon surface is heavily cratered. It has mountains, plains and depressions also. Got it? So in today class we are just going to start asteroids. Asteroids are planet-like body which move around the sun between the orbit of Mars and Jupiter. बेटा see this, these are the asteroids. ये एक एस्ट्रॉइड है. एस्ट्रॉइड एक प्लैनेट के जैसा होता है, एक छोटी बॉडीज़ रहती है विच इज़ अराउंड द सन, यानी कि ये भी सन का राउंड लेते हैं और ऑर्बिट में मार्स एंड जुपिटर की ऑर्बिट में. सी दिस इन पिक्चर, दीज आर दी एस्ट्रॉइड्स. ठीक है, दीज आर दी एस्ट्रॉइड्स. ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में सन का रेवोल्यूशन लेते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल पीसेस. किससे बने हुए हैं ये? रॉक एंड मेटल पीसेस से. कैन आई एम शोइंग यू पिक्चर. इट कैन बी मेड फ्रॉम द रॉक एंड मेटल पीसेस. ओके, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड आर सेरेस. सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड्स का नाम क्या है? Ceres. Their diameter ranges between 700 and 800 किलोमीटर. बेटा इसमें आपकी बुक में 7 to 800 लिखा हुआ है, सो आप इसे करेक्ट कर लेंगे. बेसिकली अगर हम देखें तो 940 किलोमीटर. ओके, यानी कि ये जो पूरा सेरेस है ये 940 किलोमीटर्स तक इसका डायामीटर है. मैनी साइंटिस्ट बिलीव एस्ट्रॉइड आर ब्रोकन पीसीज ऑफ प्लैनेट. बहुत सारे साइंटिस्ट को लगता है कि ये छोटे छोटे पीसीज हैं किसी प्लैनेट के, बट इट कुड नॉट coalesce with each other over time, they remain scattered. They are also called प्लेटलॉइड्स और इन्फीरियर प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स. बेटा ये एक छोटे छोटे प्लैनेट्स की तरह ही हैं. ठीक है, हालांकि एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? ये छोटे छोटे बिल्कुल कंकड़ पत्थर जैसे हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, लेकिन ये मतलब दूर हैं तो इसलिए हमें छोटे लग रहे हैं. सो दीज आर बेसिकली प्लैनेटॉइड्स बोलते हैं इसे, या फिर इन्फीरियर, क्योंकि ये क्या है हमारे इनर प्लैनेट्स के अंदर आते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड द इन्फीरियर प्लैनेट और माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं. इट लुक लाइक दिस, ये इस तरीके के दिखते हैं और ये स्कैटर्ड है. ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह पीसीज हैं काफ़ी सारे. ओके, सो द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड क्या है? सेरेस. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मीट्रियॉइड्स.
मीट्रियोइड्स के बारे में बात करेंगे. मीट्रियोइड्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट पीस ऑफ रॉक और मेटल विच मूव अराउंड द सन. ये है मीट्रियोइड्स. सी इन दिस पिक्चर, these are the meteoroids. It is basically a बेटा solid object. ये एक solid object है, pieces of rock और metal. They also can move around the sun. Its size ranges from sand to boulder size particles. यानी कि छोटे से बड़े साइज में आपको देखने को मिलेगा. When a meteorites come near to the earth, it burns away because of friction due to the air. Beta, see in this picture, these are Ceres and these are asteroids, sorry meteoroids. Meteoroids क्या है, जब भी अर्थ के पास आते हैं, ठीक है. सी इन दिस पिक्चर, जब भी अर्थ के ये पास आते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें इन दिस पिक्चर. बेसिकली जब भी अर्थ के पास आते हैं, सो आने के बाद ये क्या हो जाता है, बेसिकली ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके ही इसको फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन मीन्स जब हम दो चीज़ को घिसते हैं तो क्या होती है, उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है. या आपने पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ते हो, आप साइंस में पढ़ते हो कि जैसे अर्ली मैन ने क्या किया था, 2 स्टोन्स को रब किया था तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ था, उसमें चिंगारी निकली थी. सेम एज दैट, जब ये मीट्रियोइड्स अर्थ के पास आते हैं तो उस एयर से फ्रिक्शन होकर इसमें क्या हो जाता है, ड्यू टू फ्रिक्शन दे स्टार्ट ग्लोइंग वाइल मूविंग. यानी कि जैसे ये अर्थ के पास एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं और फ्रिक्शन से इसमें जलने जैसा शुरू हो जाता है और ये ग्लो करने लगते हैं. दे लीव अ फ्लैश ऑफ लाइट एट अ ब्लैक ल्यूमिनेटेड टेल लाइक दिस वे. और इसी को हमें देखते हैं कि ये टूटता हुआ तारा. बेसिकली आप बोलते हो ना कि ये टूटता हुआ तारा है, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो मीट्रियोइड्स होते हैं. और इसकी एक टेल जैसी, पूंछ जैसी निकलती है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज शूटिंग स्टार, वेयर इज एक्चुअल सेंसेस इट इज़ नॉट अ स्टार. यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि टूटते हुए तारे को, बहुत सारी मूवीज़ में आपने सुना होगा कि शूटिंग स्टार है, तारे टूट रहे हैं. तारा नहीं टूटता, ये मीट्रियोइड्स होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आकर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर फ्रिक्शन से इसमें बर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है और एक ऐसी पीछे इसकी रॉकेट जैसी पूंछ निकलती है जिसे हम टेल्ड जैसी पूंछ जो बर्न करती है, और ये हमें स्टार जैसी दिखती है. बट इट इज़ नॉट अ स्टार. हैव यू गॉट माई पॉइंट? When a meteoroid reaches the earth before being fully burned and create a hollow, इस टाइप का, जैसे ही क्या होता है, जब ये मीट्रियोइड ज़मीन पर गिरते हैं तो ये गड्ढा जैसा बना देते हैं. इन द पास्ट द अर्थ हैज़ बिन स्ट्रक अ सेवरल टाइम्स ऑफ मीट्रियोइड्स. ऐसा बहुत बार हुआ है कि अर्थ पर बहुत सारे मीट्रियोइड्स गिरे हैं. एग्जाम्पल, बेरियनरी कैटर इन एरिजोना, यूएसए में ऐसा क्रेटर देखा गया है. द साइज ऑफ दिस क्रेटर इज़ 1.2 किलोमीटर अक्रॉस एंड 2 मीटर्स डीप, विच इज़ सपोज टू बी फॉर्म्ड अराउंड 4.900 ईयर्स बैक. यानी कि आज से 5000 साल पहले का ये माना गया है कि कोई मीट्रियोइड्स ऐसे गिरा होगा. सो बेटा, देयर इज़ वेरी वेरी कॉमन कि इस तरीके के मीट्रियोइड्स जो हैं वो अर्थ पर आए. इट इज़ वेरी कॉमन. सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉमेट्स. अभी हमने पढ़ा एस्ट्रॉइड्स. आफ्टर दैट वी कैन स्टडी अबाउट द मेट्रियोइड्स. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉमेट्स. कॉमेट्स क्या हैं? सो कॉमेट्स आर द स्मॉल एंड इर्रेगुलर शेप हेवनली बॉडीज विच आर कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस, डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस. बेसिकली कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स बेसिकली आपको यहाँ पर दिखेंगे. सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ द इर्रेगुलर शेप. ये इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है. एंड इट इज़ मिक्सचर ऑफ आइस, डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस. जो गैसेस जमी हुई हैं ये उसका मिक्सचर है. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट. और ये भी सन का ही राउंड लेती हैं. द वर्ड कॉमेट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एस्टर कॉमेट्स. ये वर्ड जो हम कॉमेट्स पढ़ रहे हैं, COMET, कॉमेट,
ये कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड है एस्टर कॉमेट से, जिसका मतलब है लॉन्ग हेयर्ड स्टार, यानी कि वो स्टार जिसके बड़े बाल हों, ठीक है, यानी कि जिसकी पूंछ या बड़े बाल हों. The long hair refer to glowing tail which look like a hair blowing in wind. As compared the asteroid and meteoroids, comets are very small in size. बेटा जैसे कि एस्ट्रॉयड एंड मीटियोइड्स होते हैं, सेम एज दैट कॉमेट्स भी काफ़ी छोटे हैं. हेली कॉमेट, बेटा ये नाम याद रखिएगा. हेली कॉमेट इज़ नेम्ड आफ्टर दैट साइंटिस्ट एमर्ड हेली. इट अपेयर्स एवरी 76 ईयर्स. हर 76 ईयर्स के बाद हमें एक हेली कॉमेट नज़र आता है. सम कॉमेट्स आर शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल एंकी कॉमेट, इट इज़ सीन आफ्टर 3.3 ईयर्स. सभी जगह पूरे वर्ल्ड में हेली कॉमेट नज़र नहीं आता, वर्ल्ड के कुछ कुछ हिस्सों में हेली कॉमेट नज़र आता है. ठीक है, हेली कॉमेट कम्स इन एवरी 76 ईयर्स. और जैसे कि एनके कॉमेट है वो 3.3 ईयर्स में, 3.5 साल में एक बार देखने को मिलता है. सो आफ्टर दिस क्लास आवर चैप्टर इज़ ऑल्सो अ फिनिश नाउ. बट स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कनेक्टेड विथ चैप्टर. ओके बेटा, जोग्राफ़ी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. अगर आप सुने, आप समझें, आप उसे फाइंड आउट कीजिए और सर्च कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू हैव टू डू दिस असेसमेंट इन योर नोटबुक. आपको आपकी जोग्राफ़ी की नोटबुक में ये क्वेश्चंस भी करने हैं. इसमें से मैंने करेक्ट किया है. इन विच ईयर डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप ऑन अ मून? द करेक्ट आंसर इज 1969. द डायमीटर ऑफ सेरेस इज 940. मैंने क्लियर कर दिया है. आपको चारों ऑप्शंस लिखने हैं. ओके, और फिर 1 पे टिक करना है. द ग्रेट बियर इज एनिमल, constellation, a mammal or asteroid? The answer is constellation. The moonlight reaches the earth in, एग्जैक्ट आंसर है 1.26 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट 26 सेकेंड में हमें जो है वो मून की सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है. These are the fill in the blanks. Dash take 365 days 6 hours to complete one revolution around the sun. The answer is Earth. Dash is the smallest planet. Mercury is the smallest planet. Moon is a natural dash of the Earth. Moon is a natural satellite of the Earth. Neptune is a dash planet in the solar system. Farthest planet, सबसे दूर का planet है. Dash is the fifth largest planet, that is Jupiter. एस्ट्रॉयड आर द प्लैनेट लाइक बॉडीज विच ऑर्बिट, यानी कि एस्ट्रॉयड क्या है? मार्स और जुपिटर के बीच में घूमने वाला एक ऑर्बिट पे हिस्सा है प्लैनेट के जैसे, दैट इज एस्ट्रॉइड्स. स्मॉल एंड इरेगुलर शेप क्या थी अभी हमने पढ़ा, जो कि गैस और डस्ट और आइस पार्टिकल से बनी है, दैट इज कॉमेट्स. द हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड एंड मीटियोइड्स. ठीक है, दीज आर द मैचिंग. यहाँ पर आप एरो वाले मैचिंग नहीं करेंगे, आप सामने सामने करेक्ट आंसर्स लिखेंगे. एंड दिस ट्रू फॉल्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एज वेल. ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. आपको बुक के भरोसे नहीं रहना है, नोटबुक में चेक करना है. इन अ क्वेरी टाइम आई विल चेक इट टुडे. मैं आज ये काम बिल्कुल आपका चेक करूँगी. हैव यू गॉट माई पॉइंट? सो आई होप you understand it very well. Thank you so much students for watching this video, taking an interest this video. Keep healthy, keep safe and do your work on time. Again I am saying bye bye. We can meet in next class.